So thank you all for joining today. Uh, Beyond Classroom, I'll just say a couple of words about Beyond Classroom session. So it's a education program from FFF, and we do this program every Thursday from 5 o'clock to 6 o'clock. And today we have one such speaker from us from Piper Serica. He will be discussing about PMS and I think portfolio investment. So Sagar ji, we can start now. You can introduce Ajay ji, and post that we can start the session. Good evening all, namaste. Hope you all are fine. So this is a wonderful initiative by FFF, Beyond Classroom Season 70. ये फिफ्थ सेशन है आज का about the PMS and FPI investments. And for this topic today we have with us Mr. Ajay Modi, who is the head of research of Piper Serica. So it's an interesting name. हम आज जैसे बातचीत करेंगे, conversation आगे जैसे बढ़ाएंगे, we'll know more about the name of the company as well. So a brief introduction about Mr. Ajay. By origin, by his educational background, Ajay is a electronics engineer, electronics and communication telecom engineer from the University of Pune. And he used to work with Thomson Reuters. And there, after a successful career there, he ended up meeting with the founder of Piper Serica. And since last 5 years, he is with this company only, with Piper Serica. And Ajay manages about 1,000 crores in public and private markets and is active angel investor as well in Indian startups. So, Ajay bhai, I'll request you to start something about, to start the session by telling something about the company का briefing वगैरह दीजिएगा please. और आपका थोड़ा पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी शेयर कीजिएगा. So we are more interested about knowing you, yourself, your company, and then the whole topic about the products like PMS, आपका offshore funds वगैरह जो भी है, ऐसा करके we'll try to complete the session by 45-50 minutes, and then we'll open the floor for question answers. Perfect. ठीक है, thank you, Sagar. I'd like to welcome you, Mr. Ajay, from on behalf of FFF. The show is all yours. Thank you. Before I start, just let me check. Are you able to clearly hear me? No disturbance? Yes, it's all loud and clear. Perfect. Perfect. So, Sagar, thank you for the introduction. And also good evening to everyone who's joining from different parts of the country. मेरा जो presentation है, I will keep it a mix of Hindi plus English. I hope that is not a problem. और मैं इस प्रेजेंटेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ. पहला पार्ट होगा वेयर आई विल वांट टू टॉक अबाउट पाइपर सेरिका क्या है, कहाँ से हम आए हैं और हमारा विजन क्या है, मेरा पर्सनली कंपनी को लेकर विजन क्या है, हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, एंड देन लास्ट में कि ये प्रोडक्ट्स की फिलॉसफी क्या है. मतलब जैसे टिपिकली हर पब्लिक मार्केट ऑल्टरनेट फंड मैनेजर आजकल कहता है स्ट्रैटेजी. What is your strategy? What is my strategy? What is different about me? What is so unique about us? So that is the 3 parts जिसमें मैं ये presentation को कोशिश करूंगा कवर करने की. मेरी presentation actually typical वो I don't like to make very heavy data oriented presentations because वो फिर सारा ऊपर से चला जाता है. तो मैं कुछ visual effects, कुछ विजुअल्स के साथ और कुछ बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स और थॉट्स के साथ मेरा प्रेजेंटेशन कवर करूंगा. उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं कि बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है. कुछ लोग अर्ली इन देयर जर्नी पूछते हैं, कुछ बहुत लेट पूछते हैं कि पाइपर सेरिका का मतलब क्या है. तो पाइपर सेरिका बेसिकली कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 2004 में. कंपनी की शुरुआत की थी मेरे कलीग अभय अग्रवाल और रजनी अग्रवाल ने. अभय इज एन MBA फ्रॉम जमनालाल बजाज, 92 में पास आउट हुए थे. उसके बाद 6 साल उन्होंने सिटी बैंक में काम किया. ही मैनेज्ड एन ऑन बैलेंस शीट फंड देयर एंड 6 years ही वर्कड विद JP Morgan प्राइवेट इक्विटी एज अ एशिया हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट. सिटी बैंक में भी when he joined he was back then the youngest fund manager. At the age of 22 he became a fund manager. Rajni Agarwal's professional background also is into investment management. She also did her MBA from Japnalal Bajaj 92. They both were 3 years senior to Mr. Uday Kotak. And
कोइंसिडेंटली आप हम सब स्टॉक मार्केट वाले हैं, तो आई एम श्योर आप सबने आशीष कचोरिया का नाम सुना होगा. आशीष एंड अभय वेर बैचमेट्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो उस टाइम पे उनके बैच में गोल्डमैन सैक्स उनके बैच के नंबर 1 स्टूडेंट को, जो फर्स्ट रैंकर होता था, उसको हायर करता था. तो अभय 1 मार्क्स से रह गए और वहां आशीष कचोलिया वन. सो अभय और आशीष के बीच में वो एक दोस्ती वाली नोकझोंक भी चलती रहती है. Rajni Agarwal spent her career in SBI Mutual Fund. She was managing one of India's largest debt mutual funds back in the 1990s. उसके बाद उन्होंने पाइपर सरिका की शुरुआत करी बिकॉज उससे पहले अभय का जो लास्ट जॉब था वो जेपी मॉर्गन प्राइवेट इक्विटी में था एज एशिया हेड. काफी सारे इन्वेस्टमेंट उन्होंने चाइना में किए थे. तो जब वो इंडिया वापस आए तो उनका थॉट ये था कि हम कुछ ऐसा बनाएंगे जो चाइना में हो रहा है वो इंडिया में होने वाला है. उनका ये थॉट था. तो चाइना इंडिया की स्टोरी को मिक्स करके कुछ काम करना है, इसलिए कंपनी का नाम पाइपर सरिका रखा. अगर आप लोगों को पता हो तो हिस्टोरिकली जब दुनिया में ट्रेड सबसे पहले शुरू हुआ था तो करेंसी नहीं होता था, बार्टर सिस्टम होता था. इंडिया और चाइना के बीच में सबसे पहला बार्टर हुआ था पेपर और सिल्क का. चाइना का सिल्क और इंडिया का ब्लैक पेपर. तो पाइपर सेरिका का मतलब है पेपर एंड सिल्क इन रोमन इटालियन. सो दैट इज हाउ पाइपर सेरिका. दैट्स द थॉट बिहाइंड पाइपर सेरिका. कंपनी करती क्या है, हम एसेट मैनेजर्स हैं. फिलहाल एज वी स्पीक वी मैनेज मनी अक्रॉस 4 पूल्स ऑफ कैपिटल. एक हमारा ऑनशोर पीएमएस है विच इज फॉर HNIs मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपीस, जहां पे हमारी 2 स्ट्रैटेजीज या 2 पोर्टफोलियोज हैं, मल्टी कैप और मिड एंड स्मॉल कैप. दूसरा हमारा एक ऑफशोर फंड है मॉरिशस में, NRIs को और नॉन इंडियंस को इंडिया में इन्वेस्ट कराने के लिए. सो दिस इज इंडिया इनबाउंड फंड. NRIs हैं यूएस में रहने वाले, कनाडा में रहने वाले, या नॉन इंडियंस है फॉरेनर्स, तो उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए ये व्हीकल है. तीसरा, वी ऑल्सो मैनेज मनी थ्रू अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्मॉल केस, सेमी रिटेल टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए. वहां पे टिकट साइज 2 लाख रुपए का होता है. और चौथा हमारा अभी फिलहाल ये फंड क्लोज्ड है, बट वी वर इंडियाज फर्स्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड एंजल फंड. सो हमारा एक कैटेगरी 1 VC फंड है 170 करोड़ का, जो हमने पिछले साल लॉन्च किया था और इस साल जून में हमने फंड रेजिंग क्लोज करी थी. तो बेसिकली अभी हम सब कुछ मिला के 1000 करोड़ के ऊपर का हमारा AUM है. हमारा कंपनी का विजन भी मैंने आपको ये तो बताया क्या करते हैं. आई लाइक टू स्ट्रेस ऑन व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट वी वांट टू बिल्ड. तो हमारा एस्पिरेशन है कि आज से 7-8 साल बाद, मैंने पर्सनली 8 साल का गोल लिया है ये, कि 8 साल में मुझे कंपनी को $1 बिलियन का मार्केट कैप यानी कि वैल्यूएशन बनाना है. अब अगर $1 बिलियन का वैल्यूएशन बनाना है तो बैक कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज 1 बिलियन 8 साल बाद शायद 10,000 करोड़ होगा. तो 10,000 करोड़ होना है, टिपिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को 20% ऑफ AUM की वैल्यूएशन मिलती है. अगर मुझे 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन चाहिए तो 50,000 करोड़ के एसेट्स बनाने पड़ेंगे. तो मेरा जो थॉट है कि अगले 8 साल में हम 50,000 करोड़ ऑफ एसेट्स बनाएंगे. वो भी 3 हिस्सों में स्प्लिट होंगे. 10,000 करोड़ होगा प्राइवेट मार्केट में, 15,000 करोड़ होगा इंडिया ऑनशोर पब्लिक मार्केट में, और 25,000 करोड़ होगा इंडिया ऑफशोर पब्लिक मार्केट में. यानी कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स है जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए एक व्हीकल. इस पे हम ऑलरेडी काम भी कर रहे हैं. कोइंसिडेंटली हमारे जो मॉरिशस फंड है वहां पे हमारा सबसे बड़ा इन्वेस्टर इस वक्त हार्वर्ड एंडाउमेंट फंड है. तो हार्वर्ड ने पिछले 1 साल हमारे फंड पे ड्यू डिलिजेंस किया और उसके बाद फाइनली उन्होंने हमें $15 मिलियन का कैपिटल दिया है. हार्वर्ड $450 बिलियन सकता है. तो अगर मैं हार्वर्ड को सक्सेसफुली रिटर्न डिलीवर करूंगा तो मेरा जो गोल है वो वहीं से मीट हो जाएगा. So this was the thought behind Piper Serica and the vision of the company. You want me to share my story also, or you want me to do that later? Yes, you can, sir. So
मेरे साथ बेसिकली मैं पाइपर सरिका में इत्तेफाक से आ गया, मतलब आई स्टार्टेड एज अ एम्प्लॉई एंड आई एम अ डायरेक्टर इन द कंपनी. आई एम अ लार्जेस्ट शेयर होल्डर आफ्टर बोथ फाउंडर्स. सो आई एम एन ओनर डायरेक्टर इन द कंपनी. बट मेरा करियर वैसा नहीं रहा है. आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन. आई डिड माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी. और इंजीनियरिंग के बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी, एक कंपनी है थॉमसन रॉयटर्स. इट्स अ ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करते हैं. अगर आप लोगों ने ब्लूमबर्ग सुना होगा तो ब्लूमबर्ग के बाद थॉमसन रॉयटर्स दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस है. तो मैं थॉमसन रॉयटर्स के लिए काम करना शुरू, जो रोल मिला था कोइंसिडेंटली वो था, बिकॉज आई वाज एन इंजीनियर नेचुरली, तो मुझे डेटाबेस के कोडिंग का रोल मिला था. जी ऑपरेशंस का रोल मिला था. एक सर मुझे कोडिंग नहीं करना, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू एज अ करियर. मुझे फाइनेंशियल साइड पे जाना है, फाइनेंशियल एनालिस्ट बना दीजिए मुझे. तो आई स्टिल रिमेम्बर उनका रिप्लाई बड़ा रूड था. वो शायद मैं कभी भूलूंगा भी नहीं, बिकॉज पता नहीं, प्रोफेशनली ऐसा रिस्पॉन्स मुझे कभी लाइफ में आया नहीं था. ही टोल्ड मी, अजय तूने अपनी शक्ल देखी है? तो मैं 1 मिनट के लिए तो थोड़ा शॉक हो गया कि मतलब क्या कह रहे हैं ये. देन आई सेड सर इतनी भी बुरी नहीं है, बट एनीवेज मतलब आप क्या कहना चाहते हैं आप वो बताइए. तो उन्होंने कहा कि देखो, फाइनेंशियल एनालिस्ट थॉमसन रॉयटर्स में जो आते हैं सब एमबीए करके आते हैं, सीए करके आते हैं, सीएफए करके आते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़ के आते हैं. निशान थैंक यू, बट मैंने उनको कहा "सर, यार बहुत ओवर क्वालिफाइड होना पड़ता है, और आप तो डोमेन से हो भी नहीं, आप इंजीनियर हो, साइंस से हो, आपको कॉमर्स का अकाउंट्स का नॉलेज भी नहीं है." तो मैंने उनको कहा सर एक काम करो, यू पुट मी टू टेस्ट, अगर मैं टेस्ट में पास हो गया तो आप मुझे वहां पे नौकरी दे देना. अगर टेस्ट में फेल हो गया तो सर मैं बोरिया बिस्तरा उठा के घर चला जाऊंगा नौकरी छोड़ के, और तो क्या कर सकता हूँ. नौकरी ही थी उस टाइम खोने के लिए, और तो था नहीं कुछ. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो देन ही पुट मी टू टेस्ट, जो फाइनेंशियल एनालिसिस साइड के एवीपी थे, उनके पास उन्होंने एक इंटरव्यू शेड्यूल किया. मैं उनके पास गया. मैं जब पहली बार उनके पास गया तो मैं डर गया था, बिकॉज ही वॉज अ 6 फीट टॉल गाय, बॉल्ड, हैवी बिल्ड. तो मतलब वो टिपिकल जो बाउंसर होते हैं ना, वो वैसे दिखते थे और काले कपड़े पहनते थे. तो मैं पहली झलक में तो मैं डर गया कि अगर गलती से यहाँ फेल हो गया तो नौकरी से पहले यहाँ तो हड्डियां टूटेंगी. तो बट देन ही आस्क्ड मी कपल ऑफ क्वेश्चंस, आई गेव हिम द रिप्लाईज. मुझे मुझे बुकिश रटे रटाए डेफिनेशन नहीं आते थे, क्योंकि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी थी कॉमर्स साइड की. मैंने फाइनेंशियल नॉलेज, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट था इसलिए मैंने वो चीजें पढ़ी थी, जहां से भी पढ़ी थी. तो उनका नाम तरुण था. तरुण ने फिर मेरे टेक साइड के एवीपी को, जिसको मैं एक्चुअली रिपोर्ट करता था, उनको कॉल किया कि बस कहाँ से लाया इस बंदे को. तो उसने कहा कि सर मैंने तो इसको कहा था कि फेल हो जाएगा, ये वो एक्सेट्रा. तो तरुण ने कहा अरे नहीं नहीं, मेरे को इससे अच्छा इंटरव्यू लाइफ में मैंने कभी नहीं लिया, मतलब. सो ही सेड क्यों, क्या हो गया सर? सो ही सेड इसके फंडे, इससे ज्यादा क्लियर फंडामेंटल्स वाला मैंने कभी देखा नहीं. एंड नेचुरली मेरे उस टाइम जो फंडामेंटल्स थे भी वो मैंने अपने इंटरेस्ट से, जैसे आई स्टिल रिमेम्बर उन्होंने मुझे पूछा था कि पी रेशियो का डेफिनेशन बताओ. मैंने कहा सर पी रेशियो का डेफिनेशन तो मुझे आता नहीं है, मैं बता सकता हूँ आपको, प्राइस ऊपर होता है अर्निंग्स नीचे होता है, इतना बता सकता हूँ. उसने कहा नहीं, उसके तुम्हें क्या समझ में आता है? तो मैंने कहा मुझे ये समझ में आता है कि फॉर एवरी रुपी दैट अ कंपनी जनरेट्स, आप उसको कितने रुपए दोगे. अगर कोई कंपनी 1 रुपए कमाती है, उस 1 रुपए को आप क्या वैल्यू करोगे. और मेरे हिसाब से टिपिकल पी पी रेशियो का डेफिनेशन वही है ना, कि अगर 1 रुपए कोई कंपनी कमाती है, उसे आप 50 रुपए दे दो, तो वो 50 का पी हो गया. सो ही सेड बॉस ब्यूटीफुल डेफिनेशन यार, मतलब मजा आया आपसे मिलके. ही गेव मी अ जॉब. 1.5 महीने मैंने उनकी टीम में काम किया. उसके बाद आई वॉज प्रमोटेड टू व्हाट वाज कॉल्ड थॉमसन रॉयटर्स कोर टीम. कोर टीम में 20 लोग होते थे इंडिया में, अभी भी 20 लोगों की टीम है, वो हमेशा वैसी ही रहती है. और वहां पे मैंडेटरी क्राइटेरिया था 9 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस, मास्टर्स इन फाइनेंस, और अगर सीए सीएफए हुआ तो एडिशनल बेनिफिट.
मेरे पास इनमें से कुछ नहीं था, बट स्टिल आई was asked to join that team and I became the youngest member of core team in all of Thomson Reuters globally. So it was like a big achievement. अभी भी अगर आप थॉमसन रॉयटर्स के यूएस ऑफिस में जाएंगे तो उनके ग्राउंड फ्लोर पे एक हॉल ऑफ फेम है. फॉर्चुनेटली वहां पे थर्ड रो में मेरा फोटो है अभी भी. सो सो आई डिड वेल. प्रॉब्लम ये था कि वो ना उनका ऑफिस पुणे और बैंगलोर में होता था. दिस वाज बैक इन 2014 और मैं मुंबई कर हूँ. मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. और एक कहावत भी है कि यू कैन टेक समवन अवे फ्रॉम मुंबई, यू कैन टेक मुंबई अवे फ्रॉम देम. तो मेरे अंदर से मुंबई जाता ही नहीं, अभी भी नहीं जाता है. तो एक दिन मैंने डिसाइड किया, मैंने नौकरी छोड़ दी. मेरे को उस टाइम मेरे एवीपी ने कहा, बॉस यू आर डूइंग सो वेल, मैं तेरे को फ्रांस का रिसर्च हेड बना देता हूँ. आई वॉज 24 देन. तो ही सेड यू विल बिकम द यंगेस्ट रिसर्च हेड इन द हिस्ट्री ऑफ थॉमसन रॉयटर्स. आई सेड मेरे को वो नहीं चाहिए. जिस दिन आपके पास मुंबई में नौकरी होगी बता देना, मैं आ जाऊंगा. तो मैं छोड़ के नौकरी वापस आ गया. मेरे पास नौकरी नहीं थी. फिर एक दिन अभय के ऑफिस से फोन आया कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब. मैंने कहा वैसे तो अभी जॉबलेस हूँ तो व्हाई नॉट, आ जाता हूँ इंटरव्यू देने. So I went to give the interview. I liked Abhay and Rajni. I liked their thought process. तो मैंने कहा वैसे भी कुछ नहीं है खोने के लिए, चलो ज्वाइन कर लेते हैं. This was December 2015 and today is December 2023. 8 years it has just been a one-way ride. In Piper Serica, I wear multiple hats. I do business development. I head research for the company. I also manage the entire team. तो आज कंपनी में 20 लोग हैं और उसमें से 18 लोग को मैंने रिक्रूट किया है. So that has been my personal journey. I come from a very small background. My father is a chartered accountant and a textile business person. Mother is a homemaker. She was a teacher for fairly long time in her career. She's a homemaker now. I have a younger brother who's a chartered accountant, and I am from Mumbai. So that is what I am. That is who I am. लवली जर्नी अजय. सो इंटरेस्टिंगली वेंचो के जैसा थोड़ा फीलिंग आया कि भाई रट्टा मत मारो. अगर यू वांट टू नो द कंसेप्ट तो दिल से कंसेप्ट जानना जरूरी है. तो सबसे बड़ा इंटरव्यू, सबसे बड़ा बंदा क्यों ना सामने बैठा हो, विल क्रैक इट. लवली. करेक्ट, एब्सोल्युटली. मेरा तो लाइफ में मैंने इंजीनियरिंग भी, मतलब लोग मुझे कहते थे तू बड़ा खराब इंजीनियर बनेगा क्योंकि तू मतलब यू. आई वाज नेवर अ टॉपर. आई वाज नेवर इन द टॉप 3, नेवर इन द टॉप 5, नेवर एवर. पर मेरा एक ही एम होता था ना. देखो इंजीनियरिंग में ना सबका, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर, बट आप किसी से पूछोगे तो दे विल अग्री. इंजीनियरिंग में एक ही एम होता था, कैसे तो भी करके 4 साल निकल जाए और डिग्री आ जाए. तो मतलब वैसे ही लाइफ में वही सोच के काम किया है कि अगर समझ में आए तो फंडामेंटल ग्राउंड जीरो से आना चाहिए, नहीं तो बातें तो फिर कोई भी कर लेता है. तो और जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अप्रोच है ना, मैं आगे आपको बताऊंगा और आपको रियलाइज होगा कि ये भी वही है. So that is my story. But now coming to my presentation, because time limited है और मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता हूँ. I want to start my presentation and I want to keep it a little interactive. आप लोगों से बिफोर आई स्टार्ट माय मोनोलॉग, वैसे भी चल रहा है पर एक फोटो है आप लोगों के सामने. तो फोटो से मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग ये फोटो देखकर पहचान सकते हैं कि ये जो बूढ़े महाशय हैं ये कौन है. निशांत टू टू क्विक टू रिप्लाई कि बॉस मैं बताता हूँ. तो निशांत यू आर राइट. ही इज पीटर लिंच. थैंक यू सागर भाई. आई एम श्योर यू ऑल नो हिम, रिकॉग्नाइज हिम वेल. अब मैंने ये फोटो क्यों दिखाई वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ. Peter Lynch, now that you all know, I want to put some facts about Peter Lynch. Peter Lynch is one of the most consistent money managers on planet Earth ever, after Warren Buffett, of course. So Peter Lynch was a manager of, or the fund manager of Magellan Fund, part of Fidelity Investment between 1977 and 1990. उनका 23 साल का जो 13 साल का जो इन्वेस्टमेंट जर्नी रहा वहां मेगेलन फंड में. ही कंसिस्टेंटली डिलीवर्ड 29.2% एनुअल रिटर्न, which was more than double of S&P 500. And during that 13-year tenure, his assets under management went from $18 million to $14 billion. That is who Peter Lynch is. Currently, he is a philanthropist, a very well-known investor also.
पीटर लिंच की एक कोट है जो मेरे पर्सनली मेरे बहुत करीब है। मतलब मैं इस कोट को अगर बोलूं तो इसके आगे मैं ये भी बोलूंगा कि कोट के बाद ना मैं हिंदुस्तान की काफी सारे फंड मैनेजर से डिसअग्री करता हूं, और बहुत मेजरली डिसअग्री करता हूं। पीटर लिंच says that investing in stocks is an art, not a science. And people who've been trained to rigidly quantify everything have a very big disadvantage. इसको अगर मैं मेरी भाषा में जो जैसा मैं समझा हूं वैसा मैं समझाऊं तो मैं आप लोगों से एक थॉट शेयर करना चाहता हूं कि अगर मतलब देर इन इंडिया जो कहते हैं मेरी ऐसी स्ट्रैटेजी है, मेरी वैसी स्ट्रैटेजी है, हम इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उस तरीके की QGLP फलाना ढिमकाना। कोई बोलता है ग्रोथ, कोई बोलता है वैल्यू, कोई बोलता है स्पेशल स्पेशल सिचुएशन, कोई बोलता है थीमेटिक। बस मेरे को नहीं समझ में आता ये सब, मेरे को नहीं, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि ये सब क्यों बोलते हैं लोग। मेरे ये भी पल्ले नहीं पड़ा कि लोग कहते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अभी लार्ज मतलब मुझे लार्ज में करना है, मुझे all of this is out of my thought, and the reason it is out of my thought is uh, हाँ अभी क्यू यू आर राइट, यू आर राइट, अभी QARP और कल GARP MARP, सागर भाई अनलिमिटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। किसी ने रिसेंटली कुछ सालों पहले एक नया भी सिखा दिया लोगों को, कंसिस्टेंट कंपाउंडर। ठीक है, किसी ने आके कहा, एक महाशय ने, कि ये फलाना HDFC बैंक ले लो, ये तो हर 4 साल में डबल होता है। पिछले 4 साल में तो HDFC बैंक के सेविंग्स अकाउंट ने स्टॉक से ज्यादा रिटर्न दे दिया। तो ऐसी कोई चीज होती नहीं है कि मतलब आप ये ले लो तो लाइफ टाइम पैसे बनाते ही रहोगे, मनी मेकिंग मशीन है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पीटर लिंच साहब कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को रिजिडली क्वांटिफाई कर रहे हो ना कि मैं इस जोन में अपने आप को लॉक कर लूंगा, तो उसका मतलब ये है कि आपको एक जंग के मैदान में भेज दिया गया है। सामने आपकी जो अपोजिंग टीम है उसके पास 3,800 लोग हैं। उसमें से कुछ लोगों की एक आंख नहीं है, कुछ की दोनों नहीं है, कुछ की एक हाथ नहीं है, कुछ के दोनों नहीं है, कुछ का एक पैर नहीं है, कुछ के दोनों नहीं है, और कुछ सही सलामत हैं। 3,800 लोग। दूसरी तरफ हैं आप, आपके पास 40 लोग हैं या 80 लोग हैं, उसमें से भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ की एक आंख नहीं, कुछ की एक पैर नहीं। तो मतलब अगर आप ऐसी टीम के साथ जंग लड़ेंगे तो नेचुरली सामने वाला जीतेगा। जो मैंने आपको केस बताया उसमें सामने वाला इज मिस्टर मार्केट, जहां पे 3,800 कंपनीज लिस्टेड हैं। और आप या मैं जो कहते हैं कि हमारा स्टॉक यूनिवर्स तो लिमिटेड है, हम तो ऐसी ही कंपनीज देखते हैं। तो ये जो रिजिडिटी है ना, ये काम नहीं करती, ये किसी के लिए काम नहीं करती। और पीटर लिंच से देख लो, या मैं आप लोगों से एक और फोटो दिखाता हूँ, आप उनको देख लो, सर को। तो एक और फोटो है, आई एम श्योर आप लोग इनको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप पीटर लिंच को जानते हैं तो मतलब इनको कौन नहीं जानता, बच्चे जानते हैं। बट फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इनको पहचानते हैं? सागर भाई बिल्कुल सही, वॉरेन बुफेट। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। अगर आप जानते हैं वॉरेन बुफेट को, अगर आप लोगों ने कभी इनको सुना है, पढ़ा है, बिकॉज मैंने पढ़ा है, मेरे लिए वॉरेन बुफे इज एन आइडल, आई आई आइडियलाइज हिम। पिछले 7 साल से कंसिस्टेंटली हर साल उनके एनुअल इवेंट को मैंने डिजिटली वॉच किया है। पूरे के पूरे, रात खराब होती है बिकॉज US में होता है तो, बट इट इज अ जर्नी ऑफ इट्स ओन काइंड। आप लोग इनको जानते हैं, वॉरेन बुफे को, आप लोग भी मार्केट में हैं, ये भी मार्केट में। आप लोगों ने कभी वॉरेन बुफे से सुना क्या कि उन्होंने कहा हो मेरी तो यही स्ट्रैटेजी है? कभी वॉरेन बुफे से आप लोग, काफी सारे एडवाइजर्स इन्वेस्टर्स है ना, वो फंड मैनेजर से एटलीस्ट PMS और AIF वालों से पूछते हैं आपका स्टॉक यूनिवर्स क्या है? कभी आपने वॉरेन बुफे से सुना स्टॉक यूनिवर्स के बारे में? कभी आपने वॉरेन बुफे से सुना कि मैं इस कंपनी में करूंगा, मैं ऐसी कंपनी में तो इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं, मैं PSU में नहीं करूंगा, मैं इसमें नहीं करूंगा, मैं उसमें नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसी में कभी सुना क्या? कभी वॉरेन बुफे ने कहा हो कि मैं तो ऐसा ही स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूं? द आंसर इज नो। तो अब मैं वॉरेन बुफे की फोटो आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि वॉरेन बुफे की भी एक कोट है जो मेरे लिए पर्सनली, मैं मानता हूं उसको, मैं कोशिश करता हूं उसको प्रैक्टिस भी करूं। द कोट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परामेंट एंड नॉट इंटेलेक्ट। वॉरेन बुफे ने लिटरली एक अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि
अगर आप एक 100 आईक्यू वाले को 190 वाले आईक्यू वाले पर्सन से लड़ा दें, उन दोनों की इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन को टेस्ट करें, तो 100 वाला गारंटीड जीत जाएगा। 100 वाला इसलिए जीत जाएगा क्योंकि उसका आईक्यू कम है, तो वो बहुत कम दिमाग लगाएगा। 190 वाला बहुत ज्यादा दिमाग लगाएगा, और जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो हार जाएगा। दिस इज व्हाट वॉरेन बुफे सेड। और ये जो मैं आपको कोट बता रहा हूँ, ये मैंने प्रैक्टिस किया है, मेरी पूरी टीम को भी मैं कहता हूँ कि ये सोचो, इसी तरीके से होता है। मेरे हिसाब से वॉरेन बुफे ने इस दुनिया को एक परफेक्ट मनी मेकिंग रेसिपी सिखाया है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं। मुझे अगर आप पूछो कि क्या इस दुनिया में एक ऐसी थॉट प्रोसेस है, ऐसा स्ट्रैटेजी है विच इज अ परफेक्ट मनी मेकिंग मशीन, मतलब आंख बंद करके वो करो पैसे बनेंगे, आई वुड से यस। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों की स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया में हर स्ट्रैटेजी काम करती है। बट अगर इंडिया ही नहीं, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, और सिर्फ इक्विटी मार्केट में नहीं, किसी भी एसेट क्लास में आप चले जाएं, तो एक स्ट्रैटेजी ऐसी है जो हमेशा काम करेगी, आपको गारंटीड पैसा बना के देगी। सेबी रेस्ट्रिक्ट करता है, इसलिए लोग वो वर्ड यूज नहीं करते, पर अगर आप उसको फॉलो करेंगे, आई कैन गारंटी यू आप पैसा बनाएंगे। और स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, फाइंड ग्रेट आइडियाज एट अ बार्गेन एंड स्टे विद देम। इसमें तीन हिस्से हैं, फाइंड ग्रेट आइडियाज, दूसरा हिस्सा है एट अ बार्गेन, तीसरा हिस्सा है स्टे विद देम। इसी तीन हिस्सों में इस पूरे मार्केट का सार है। और इसमें मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो, तो सबसे बड़ा जो फोकस पॉइंट है ना, वो बीच वाला है, विच सेज एट अ बार्गेन। अगर मैं एक ब्रिज बनाऊं, एक तरफ फाइंड ग्रेट आइडियाज, दूसरी तरफ स्टे विद देम, बीच में एक ब्रिज है एट अ बार्गेन। अगर बार्गेन नहीं है, तो आप ग्रेट आइडियाज को लेके उनके साथ रुक नहीं पाओगे कभी। ये होगा, हमारे साथ भी हुआ है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। इस आइडिया को लेके जो हमने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, rather देन गिविंग यू ज्ञान की मैं क्या कैसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो ऑफ कोर्स आएगा। बट मैं आपको कुछ स्टोरीज बताता हूँ। हमने सीडीएसएल में 4 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 200 रुपए का स्टॉक था। वो 200 के बाद गिरा भी, बढ़ा भी, फिर गिरा, फिर बढ़ा। बट टुडे इट इज 2000 रुपीज, अबाउट 10x इन 4 years। सिमिलरली अपोलो हॉस्पिटल 1100 रुपए पे 4 साल पहले हमने इन्वेस्ट किया था, आज 5500 का है, 5x इन 4 years। एंजल वन अनदर क्लासिक स्टोरी, 300 पे हमने लिया था पहली बार। डेट भी मैं आपको बता सकता हूँ, 2020, जून 2020 की बात है ये। तो 3.5 साल में ये स्टॉक 300 का 3000 रुपए हुआ है। एपीएल अपोलो ट्यूब गोकुलदास एक्सपोर्ट्स हमने रिसेंटली लिया था, जनवरी फरवरी 23 में। इट बिकेम 3x इन द लास्ट 1 year। हमने बेच दिया, वी मेड मनी। सम ऑफ दीज और मोस्ट ऑफ दीज वी आर स्टिल होल्डिंग। पर एज आई सेड, मैं ग्रेट नहीं हूँ, और मैं आपको सिर्फ बायस करके मेरे विनिंग थॉट्स नहीं बताना चाहता हूँ। मैंने पैसे गवाए भी हैं, मैंने गलतियां की भी है, और मैंने जो बोला उसके अगेंस्ट जाके मैंने गलतियां की है। वी इन्वेस्टेड इन पीवीआर एंड वी एग्जिटेड एट अ लॉस ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज नेचुरली वो तो बिजनेस ही जीरो हो गया था। वी इन्वेस्टेड इन जोमैटो, अगर हम एग्जिट नहीं करते तो अभी प्रॉफिटेबल होता वो पोजीशन। बट आई थिंक मैं भी अपना जो बीच वाला हिस्सा था ना, एट अ बार्गेन, वो भूल गया था। मैंने वो स्टॉक 90 रुपीज में खरीदा 2021 में। वो जो मिड कैप स्मॉल कैप मेनिया था ना, लिक्विडिटी वाला मार्केट, उसमें तो वो 90 रुपीज का 160 हो गया 2 महीने में, और उसके बाद गिर के आई थिंक 45-50 हो गया। वी एग्जिटेड एट 70 रुपीज, वी मेड अ लॉस ऑफ अबाउट 20-22%। नहीं बेचता तो आज प्रॉफिटेबल होता, थीसिस मेरी सही थी, पर टाइमिंग गलत था। इंडिया मार्ट तो मैं नहीं बेचता तो आज भी लॉस मेकिंग ही होता, 8,000 पे लिया था, फिर 5,500 पे निकाल दिया। तो वी मेड मिस्टेक्स एंड वी लॉस्ट मनी। बट मिस्टेक्स बनाने के बाद भी हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है, टच वुड थैंकफुली, पिछले 8.5 साल का हमारे पोर्टफोलियो का, मल्टी कैप पोर्टफोलियो 8.5 साल पुराना है। और अगर पिछले 8.5 साल का आप देखें, तो 20.3% का CAGR है।
पोस्ट फीस एंड एक्सपेंसेस। उसके साथ साथ हमारे पास और एक पोर्टफोलियो है, स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो है, जो 3.25 साल पुराना है। 3 3.25 साल का 50% का CAGR है इसका, यानी कि पिछले 3 साल में 3 गुना रिटर्न बना है। उसके सामने आई हैव फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है नहीं एक्चुअली, ये तो फॉर्चुनेटली ही है। फॉर्चुनेटली आई हैव बीटन द मार्केट इन द नियर टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एट अ वेरी हैंडसम मार्जिन। तो द पोर्टफोलियोज हैव डन वेल। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये जो आप पोर्टफोलियोज देख रहे हैं, मल्टी कैप और मिड एंड स्मॉल कैप, ये इन्वेस्टर्स के लिए दो पैकेज में अवेलेबल है। एज अ PMS जो कि 50 लाख रुपी प्रोडक्ट है, एंड एज अ 2 लाख रुपी प्रोडक्ट ऑन स्मॉल केस। दोनों में डिफरेंस ये है, PMS में आप मुझे पैसे दे देंगे, मैं मैनेज करूंगा, ऑफ कोर्स इन इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट, बट इट विल ऑल बी मैनेज्ड बाय द मनी मैनेजर। स्मॉल केस में investor needs to have a demat and trading account with one of the 20 brokers that are small case partners, और फिर बाकी वहां जाके इन्वेस्टर खुद सब्सक्राइब करके इन्वेस्ट कर सकता है स्टैंडर्ड 2.5% फी स्ट्रक्चर के साथ। ये प्रोडक्ट हमने इसलिए भी बनाया क्योंकि इंडियन इन्वेस्टर को डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। इट्स नॉट अ पुश, इट्स अ पुल प्रोडक्ट। पीपल कम टू मी सेइंग कि आपके स्मॉल केस में डालना है, तो वो इसलिए क्योंकि हमने रियलाइज किया लोगों को डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, एंड व्हाट बेटर देन अ मनी मैनेजर हु मैनेजेस मनी फॉर HNIs एंड अल्ट्रा HNIs एंड इंस्टीट्यूशंस, कि हम उनके लिए, रिटेल इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट इक्विटी भी कर सके। एंड इट बिकम्स अ इन प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर एडवाइजर्स ऑल्सो, बिकॉज आई एम श्योर आप लोगों के पास भी इन्वेस्टर्स होंगे जो डायरेक्ट स्टॉक्स करना चाहते हैं। So this product is available in 2 packages. We also have an offshore fund. मॉरिशस में बेस्ड है ये फंड, डॉलर में इन्वेस्टमेंट होता है और डॉलर में ही बाहर जाता है। मंथली NAV मिलता है इन्वेस्टर को। इट इज लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड, जस्ट दैट वो मॉरिशस में है और $1 लाख की मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। दिस प्रोडक्ट इज टिपिकली सूटेड फॉर NRIs एंड ऑल्सो नॉन इंडियंस। जैसे आप लोगों के पास NRIs तो हैं, पर आपके मान लो अगर 10 NRI इन्वेस्टर्स हैं, 5 US में हैं, वो 5 जो आपके US में इन्वेस्टर्स हैं उनके 5-10 गोरे दोस्त होंगे जिनके पास पैसा है, पर आपके पास उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है। और अगर मैं 1 मिनट डेविएट होके थोड़ा सा कुछ और बात करूं, किसी ने मुझसे पूछा कि आपको इलेक्शन का आउटकम क्या लगता है, तो मैंने एग्जिट पोल्स देखे। मैंने कहा एग्जिट पोल्स इतने कंफ्यूज्ड हैं, मुझे तो लग रहा है ये 3-0 क्लियर विक्ट्री होगी। उसके बाद लास्ट वीक में एक प्रेजेंटेशन करा था, उसमें किसी ने कहा सर अभी पैसे नहीं डालते हैं ना, बिकॉज इलेक्शन आने वाला है, हो सकता है ऑपोजिशन पावर में आ जाए। मैंने कहा आप इंडिया के इलेक्टोरल लोगों को बेवकूफ तो नहीं समझते होंगे ना, मतलब अगर लोग दे रहे हैं किसी को वोट तो कुछ सोच समझ के ही दे रहे होंगे। तो मुझे सवाल आया कि सोच समझ के देने के लिए टैंजिबल बेनिफिट भी होना चाहिए ना। मैंने कहा देखो अभी मेरे पास, मैं इकोनॉमिस्ट तो हूं नहीं, होता तो मेरे पास एक रिपोर्ट होती जिसमें मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता देता, पर मैं एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों से बताना चाहता हूँ। 2013 में जब मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई, मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, उसके बाद मैं ना ट्रेनिंग के लिए थॉमसन रॉयटर्स के ट्रेनिंग के लिए मैं फ्रांस गया था। उनका फ्रांस में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है पेरिस में। तो मैं पेरिस गया था, वहां पे मैं हॉस्टल में रहा था कुछ टाइम के लिए, मेरे 1 हफ्ते का ट्रेनिंग था। उसके बाद उन्होंने कहा अब अगर रहना है तो खुद के पैसे पे रहो, और होटल बहुत महंगे होते थे, अभी भी हैं, पर और यूरो में एनीवेज खर्चा करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लाइक अ टिपिकल सोलो ट्रैवलर आई बुकड अ हॉस्टल और वहां पे रहा। तो सिमिलर मेरे एज ग्रुप के सोलो ट्रैवलर्स अलग अलग देश से आए थे। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, मैंने कहा इंडिया। तो वो उसके आगे कुछ पूछते नहीं थे। फिर मैंने 1-2 जन दोस्त बन गए थे, उनसे पूछा कि यार मैं इंडिया बोलता हूँ, उसके बाद तुम सर झुका के आगे क्यों बढ़ जाते हो। तो उन्होंने कहा इंडिया की एक ही इमेज है ना, पुअर पीपल, हंग्री पीपल, हमको तो वही मालूम है। हमको मुझे लिटरली कुछ लोगों ने ये कहा कि इंडिया के बारे में नाम तो सुना है, पर वो मैप पे कहाँ है वो हम कभी लोकेट नहीं कर पाएंगे। सम पीपल सेड आई नो इट इज साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा। ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ 2013 की है। 2023 में आप दुनिया के, मैं एक गारंटी देता हूँ, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना, और आप जाकर बोले आप इंडिया से हैं, तो वो सामने वाला है वो सिर्फ आपको देखेगा नहीं, बट सर उठा के देखेगा, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी। उसको ये पता होगा इंडिया कहाँ है,
यहाँ तक कि और कुछ नहीं, मैंने 2 दिन पहले आशीष चौहान जी का, एनएसई के जो सीईओ हैं, उनका एक ट्वीट देखा था। सियोल के, कोरिया के एक स्टेशन पे कॉस्पी, जो कि कोरिया का एक इंडेक्स है, उसके बाजू में निफ्टी का टिकर चल रहा था। कोरिया के रेलवे स्टेशन पे निफ्टी का टिकर चल रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मेरे को बाकी तो नहीं मालूम, ये टैंजिबल बेनिफिट है। 2023 में हिंदुस्तान, इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड कंट्री है। आई एम वेरी श्योर जितनी रिस्पेक्ट हमारी है उतनी कहीं नहीं है और किसी देश की नहीं है। बाकी हर देश के लिए कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग यूएस को अच्छा बोलेंगे तो कुछ लोग बहुत खराब बोलेंगे। इंडिया को कोई खराब नहीं बोलेगा। एंड दैट इज अ टेंजिबल बेनिफिट दैट वी हैव सीन। उसका आउटकम, अब मैं स्टोरी आप लोगों को इसलिए भी बता रहा हूँ कि दुनिया में दूसरे देशों में, स्पेसिफिकली यूएस कनाडा में से इतने इन्वेस्टर हैं, यूरोप में इतने इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दे आर नॉट इंडियन, दे आर नॉट एनआरआई, दे आर नॉट ओसीआई, दे आर फॉरेनर्स। आप लोग जब अपने एनआरआई इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं तो उनसे फॉरेन इन्वेस्टर्स का रेफरेंस लीजिए, आपके पास मैं प्रोडक्ट ला के देता हूँ। और ये प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछले 4.5 साल हुए हैं इस फंड को हमारे, और 4.5 साल का 17.6% पोस्ट फीस, पोस्ट एक्सपेंस, पोस्ट फंड लेवल टैक्स रिटर्न है। 17.5% सीएजीआर है, कंपेयर टू 8% सीएजीआर फॉर निफ्टी 50 यूएसडी। ये 4.5 साल का है। और सिर्फ लॉन्ग टर्म ही नहीं, मैंने शॉर्ट टर्म में भी निफ्टी को हैंड्स ऑन बीट किया है। आई हैव हैंड्स ऑन डन वेल अगेंस्ट निफ्टी 50 यूएसडी। ये जो मैं आपको वापस से बताता हूँ, ये जो मैं रिटर्न बता रहा हूँ, यूएसडी रिटर्न है, पोस्ट फीस, पोस्ट एक्सपेंस, पोस्ट फंड लेवल टैक्स। 10% लॉन्ग टर्म, 15% शॉर्ट टर्म फंड इंडिया में देता है, और ये टैक्स देने के बाद 17.6% का सीएजीआर है, अगेंस्ट 8% फॉर निफ्टी 50 यूएसडी। नाउ, ये मैंने आपको रिटर्न दिखा दिए, सब बता दिया, वेरी गुड। कुछ पोर्टफोलियो कंपनीज भी दिखा देता हूँ। और फिर मैंने जो आपसे कहा कि फाइंड ग्रेट आइडियाज एट अ बार्गेन एंड स्टे विद देम, इसको थोड़ा सा मैं, आई नो आई विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम, 5 मिनट कोशिश करूंगा इसको करने का। तो मैं आपको 2 केस स्टडीज बताऊंगा। एक है सीडीएसएल, मैंने आपसे कहा 200 रुपए में लिया, अभी 2000 है। पर अगर आप देखेंगे ना तो उसने मेरी बहुत बार पेशेंस टेस्ट किया। वो 200 का फिर सडनली 1200 हो गया, फिर गिर गया 1500, फिर 1500 हो गया, फिर गिर के 900 हो गया, फिर अभी 1900 हो गया। इट टेस्टेड माई पेशेंस, बट बिकॉज आई स्टक टू इट। और मुझे मालूम था लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये है कि इंडिया में लोग ज्यादा से ज्यादा डीमैट अकाउंट्स खोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलेंगे, स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज दिस इज वेयर वेल्थ इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। वेस्ट में भी यही हुआ, इंडिया में यही होगा। वी स्टेड विद द आइडिया एंड वी मेड मनी। अनदर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, ये तो पर्सनली भी मेरे लिए बहुत अच्छा केस स्टडी बना। बताता हूँ क्यों। हमने डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए पे। दिस वॉज इन जून 2020। उसके बाद इन 1 ईयर ये स्टॉक 5000 हो गया। तो मैं सोच रहा था बस मैं तो ग्रेट हूँ, वॉरेन बुफे से भी ज्यादा ग्रेट हूँ, 5x बना लिया 1 साल में, वेरी गुड। पर ये 5x होने के बाद है ना, ये मतलब 5000 से फिर गिर के 2500 हो गया, फिर बढ़ा 3000 हो गया, फिर वापस गिर के 2300 कुछ पे आ गया था लास्ट ईयर। इट टेस्टेड माई पेशेंस एवरी टाइम, एवरी क्वार्टर प्रोबेबली इसने मेरा पेशेंस टेस्ट किया। बट टुडे वी आर सिटिंग ऑन अ 6x रिटर्न, बिकॉज 6000 से ऊपर का स्टॉक प्राइस। अब इतना ही नहीं, ये स्टोरी यहाँ लिमिटेड नहीं है। ये स्टोरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करता हूँ। इस एग्जाम्पल को बताने से पहले एक थॉट प्रोसेस बताता हूँ। मेरे हिसाब से ना, आप लोगों के जो पोर्टफोलियोज हैं, मैं म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा, बिकॉज वहां पे रोज पैसा आते रहता है, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है। बट अगर आपके डायरेक्ट खुद के पर्सनल पोर्टफोलियोज हैं, या एज अ पीएमएस मैनेजर मैं देखूं, तो मैं उस पोर्टफोलियो को एज अ गार्डन समझता हूँ। वो गार्डन इसलिए क्योंकि वहां पे जब मैं पैसे डाल रहा हूँ तो वो बीज बोने की तरह है, स्टॉक्स लेने का। और अल्टीमेटली हमारा एस्पिरेशन ये है कि ये पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो जाए कि हमारे रिटायरमेंट में हमें प्लस हमारी फैमिली को छांव दे। तो इसलिए मेरे लिए वो गार्डन है। अब अगर आप इस एनालॉजी को समझते हो, अग्री करते हो, तो आपको ये भी अग्री करना पड़ेगा कि गार्डन के लिए ना, आपको सिर्फ एक बार बीज बो के छोड़ दिया तो गार्डन में फूल नहीं खिलेंगे, पेड़ नहीं बनेंगे। उसको रेगुलरली सनलाइट चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको उसके साथ काम करना पड़ता है।
तो इस गार्डन को, जो आपका पोर्टफोलियो है, उसके साथ भी तो रेगुलरली उसको इनपुट देना पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से वो इनपुट यहीं से आता है, बिकॉज मैं इन्वेस्टर के पास जाके, या आप भी रोज नया पैसा नहीं डालोगे, राइट। मैं एक डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ कि मेरा एक हाई एलोकेशन और लो एलोकेशन होता है हर स्टॉक का। कहने का मतलब ये है, डिक्सन मैंने लिया 4%, 5 गुना हो गया तो बढ़ के 18% हो गया होगा, 20% हो गया होगा, तो उसको काट के वापस मैं 5% या 4% पे ले आऊं। जो मैंने प्रॉफिट बुक किया वो यूज करूं रीडिप्लॉय करने के लिए, या शॉर्ट टर्म में कैश लेके बैठ जाऊं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट स्ट्रक्चर। उसी में रीडिप्लॉय हो सकता है, कहीं और रीडिप्लॉय कर दूं, हो सकता है वो स्टॉक मुझे फ्यूचर में वापस अपॉर्चुनिटी दे। तो हमारे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलोकेशन मैनेज करना, कि कोई स्टॉक बहुत बढ़ गया तो रिस्क मैनेज करने के लिए उसका एलोकेशन बैक टू नॉर्मल ले आओ, उससे जो पैसा आया उससे कुछ और ले लो। तो ये हमने डिक्सन के साथ किया भी, 1000 से 5000 हुआ तो एलोकेशन आधा कर दिया। फिर जब गिर गया तब इमिडिएटली तब तो नहीं ले पाए, बिकॉज वी कांट कॉल द टॉप एंड द बॉटम। फिर वो बढ़ गया, फिर रिग्रेट किया कि यार ले लेना चाहिए था, बट फिर उसने वापस अपॉर्चुनिटी दी पिछले साल। तो हमने कुछ कैश था रीडिप्लॉय किया, एंड नाउ वी आर सिटिंग ऑन अ हैंडसम गेन। इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को कंपाउंडिंग की मेरी पर्सनल पिछले 1 साल में जो मैंने पर्सनली देखा, एक्चुअली 2 साल में, हमने लेमन ट्री में इन्वेस्ट किया 33 पे, बिकॉज थोड़ा ब्रेव कॉल था, 3% ही एलोकेशन किया। वो 3% 3 गुना हो गया, 7.5-8% बन गया था मेरे लिए। वो हमने पूरा एग्जिट कर दिया। वो पूरा एग्जिट किया तो उससे मैंने 3 टेक्सटाइल स्टॉक्स खरीदे, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, एसपी अपैरल्स और हिम्मत सिंह का। आज जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वो तीनों भी एग्जिट कर दिए हैं। गोकुलदास एट 3x, हिम्मत सिंह का, सॉरी, गोकुलदास एट 3x, एसपी अपैरल्स एट 2.5x, एंड हिम्मत सिंह का एट ऑलमोस्ट 70-80% गेन। तो जो मेरा 100 था, मेरा 300 बन गया। वही 300 को मैंने फिर से डिवाइड किया, और वो 300 मेरे लिए 800 बन गया। इन एसेंस मेरा 100 मेरे लिए 800 बन गया। तो ये सारी चीजें है ना, ये एलोकेशन मैनेजमेंट से आती है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सब आप कह रहे हो तो चर्न बहुत हाई होगा। मैं कहता हूँ 25 से 30% मेरा एनुअल चर्न है। बट मेरा सवाल ये है कि आप लोगों को चर्न से फर्क पड़ता है या रिटर्न से? मेरा चर्न रिटर्न बनाने के लिए जा रहा है, रिटर्न गंवाने के लिए नहीं जा रहा। तो दैट इज अ थॉट प्रोसेस। अब जो मैंने आपको बताया था, फाइंड ग्रेट आइडियाज एट अ बार्गेन एंड स्टे विद देम हो गया। फाइंड ग्रेट आइडियाज का कोई थॉट प्रोसेस, कोई फिलोसॉफी, कोई ज्ञान है नहीं मेरे पास। आई वॉन्ट टू टॉक फॉर अ मोमेंट अबाउट ग्रेट एट अ बार्गेन। तो 2 केस स्टडीज हैं आपके सामने, ये वाली तो फेयरली सिंपल है। अगर आप सेंसेक्स को देखें तो 2020 में सेंसेक्स वाज 40,723 जनवरी 2020 में, और अक्टूबर में 64,000 अप्रोक्सीमेटली। द रिटर्न इज अप्रोक्सीमेटली 57%। बट इसी दौरान सेंसेक्स का जो ईपीएस है दैट हैज ग्रोन बाय 96%। सेंसेक्स का रिटर्न इज लेस देन सेंसेक्स के ईपीएस का रिटर्न। नाउ दैट इज बिकॉज जो आप ब्लू कलर में शेडेड है देख रहे हैं ना, उस टाइम पे 27 का पी था, अभी 21.7 का पी है। तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैं आप लोगों से एक और स्टोरी दिखाता हूँ नंबर्स की। लेट्स टॉक इन नंबर्स फॉर 5 more minutes। केस स्टडी ये है कि मैं आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से। जब मैं नाम बताऊंगा तो शायद आप भी एग्री करेंगे। इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 4 साल पहले दिसंबर 2019 में भी 1700 था, अभी भी 1700 है। यानी कि मोटा मोटी एब्सोल्यूट पर मैं देखूं तो 3% का यहाँ पे रिटर्न है। इस दौरान इस कंपनी की बुक वैल्यू 300 रुपए से ब्रॉडली 600 रुपए की हो गई है। बुक वैल्यू डबल हो गई। यानी कि फंडामेंटली ये कंपनी, ये बुक वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब ये बैंक है, तो ये बैंक फंडामेंटली ग्रो हुआ है। पर रिटर्न इन्वेस्टर का नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि उस टाइम पे महंगा था। अभी उस टाइम पे 6 टाइम पी मल्टीपल था ऑलमोस्ट, सॉरी, पी प्राइस टू बुक, और अभी 3 टाइम्स है। कहने का मतलब ये है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा था, लोग इसके साथ रुके भी हैं 4 साल से, पर रिटर्न नहीं बना बिकॉज एट अ बार्गेन जो बीच वाला हिस्सा था वो मिसिंग था। ये स्टोरी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की। इट्स अ लार्ज कैप स्टॉक। हम सब उदय कोटक सर को, वी ऑल लुक अप टू हिम। ही इज एन आइडियल फॉर अ लॉट ऑफ अस। ही बिल्ट इंडियाज
मोस्ट लव्ड बैंक, ही इज एशियाज रिचेस्ट बैंकर। बैंक भी ग्रो हुआ, स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं हुआ। नॉट बिकॉज उदय कोटक डिड एनीथिंग रॉन्ग, इट वाज जस्ट दैट 4 साल पहले वो स्टॉक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म पे ट्रेड कर रहा था, इसलिए पिछले 4 साल में साइडवेज गया है। कहने का मतलब ये है कि अच्छे से अच्छा कंपनी, अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट साइडवेज जा सकता है, विच मीन्स आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। आप मेरे साथ इन्वेस्ट करें, कहीं भी और इन्वेस्ट करें, आपको वैल्यूएशन का ध्यान रखना है। नाउ बिफोर आई स्टॉप, मैं अपनी सारी चीजों को, मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपका स्टॉक यूनिवर्स क्या है, ये सब मुझे समझ ही नहीं आता। मेरी एक ही स्ट्रैटेजी है, मेरी स्ट्रैटेजी है मेकिंग मनी। वो इसलिए भी है कि हमारे पीएमएस में या हमारे पोर्टफोलियोज में हम सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। वी हैव 100% स्किल इन द गेम। All my money is in the exact same portfolio. I do not have any other trading account. We do not encourage this. All the employees of Piper Serica have to only invest in stocks that are a part of Piper Serica's portfolio. They cannot invest outside. ये इसलिए भी है, हम एम्प्लॉयज को खुली छूट देते हैं, आप कुछ और इन्वेस्ट कीजिए, पर आपके पास आइडिया है तो पहले मेरे पास लाइए, मैं भी उस पर रिसर्च करूंगा, देखूंगा, अच्छा हो तो इन्वेस्टर पहले, पैसा बनाए हम बाद में। सो इट इज 100% स्किन इन द गेम। एंड इन अ नटशेल मेरी स्ट्रैटेजी क्या है? लुक फॉर इंडस्ट्रीज दैट हैव अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। उसके बाद डू अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री रिसर्च, कंपनी डिलीजेंस, रेगुलेटरी चेक्स। ये सारी चीजें आपके फेवर में होनी चाहिए। मैं आई कैन टॉक एट लेंथ कि हम रिसर्च कैसे करते हैं, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। तीसरा, बैक द राइट प्लेयर्स। समटाइम्स इट इज वन कंपनी। अगर आपको पेंट इंडस्ट्री अच्छी लगी तो समटाइम्स इट कुड बी जस्ट एशियन पेंट्स, समटाइम्स इट कुड बी मल्टीपल कंपनीज इन द सेम सेक्टर। जैसे एक टेक्सटाइल में हमने कहा, हमने 3 कंपनीज में इन्वेस्ट किया। उससे पहले मैंने हॉस्पिटैलिटी, लेमन ट्री के बारे में बताया, एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया। कभी एक है, कभी सेम सेक्टर में 2 है, कभी 4 है। जहां रिस्क ज्यादा लगे डाइवर्सिफाई करके करना चाहिए, जहां वैल्यूएशन ज्यादा लगे डाइवर्सिफाई करके करना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेट एम तो रिटर्न बनाना है, ये बताना नहीं है कि मैं ग्रेट स्टॉक सिलेक्टर हूं, रिटर्न बनाना है। चौथा, फोकस हार्ड ऑन फाइंडिंग ग्रोथ प्ले एट वैल्यू मल्टीपल्स। जो सीक्रेट फॉर्मूला है ना, वो यही है, बाय गुड कंपनीज एट वैल्यू मल्टीपल्स। पांचवा, रेगुलरली मैनेज एलोकेशन। बेस्ट वे टू कीप बुकिंग प्रॉफिट्स एंड पुटिंग इट बैक टू वर्क। अब कहीं कुछ बढ़ गया, प्रॉफिट बुक कर लो, बिकॉज हो सकता है वो करेक्ट हो जाए या साइडवेज जाए, अपने वो पैसे निकालिए, कहीं और डिप्लॉय कर सकते हो। और अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो ऐसा होगा नहीं कि एट एनी गिवन पॉइंट 20 में से 20 पोर्टफोलियो, 20 कंपनीज ही ऊपर होंगी, कुछ तो गिर गई होंगी, उसमें रीडिप्लॉय करोगे, कल वो भी बढ़ेंगी। तो इस चीज के लिए मैनेजिंग एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इन माई पोर्टफोलियो और वेदर पर्सनली इन योर्स। ऑल्सो स्टे इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स वेयर अर्निंग्स आर ग्रोइंग। स्टॉक प्राइस मत देखो, अगर फंडामेंटली स्टोरी सही जा रही है तो जाने दो, हो सकता है डिले के साथ बनेगा, अगर आप सही वैल्यूएशन पे आए थे तो पैसा बनेगा। डोंट बॉदर अबाउट मार्केट मोमेंटम। सेकेंड लास्ट थिंग, डाइवर्सिफाई, बट नॉट टू मच एंड नॉट टू लेस। 5 स्टॉक पोर्टफोलियो भी मत बनाओ और 100 स्टॉक पोर्टफोलियो भी मत बनाओ। ऐसा बनाना है मेरे हिसाब से। मैंने एक स्टडी करी थी, रॉयटर्स ने मुझे लंदन भेजा था सीआईएसआई इंस्टीट्यूट में एक कोर्स करने के लिए। तो मेरा वहां पे एक प्रोजेक्ट था कि आइडियल स्टॉक्स कितने होने चाहिए पोर्टफोलियो में टू मेक डिसेंट रिटर्न। और मेरी स्टडी, मैंने 16 कंट्रीज की स्टडी करी थी, एंड द आउटकम वाज आइडियल स्टॉक शुड बी 19 to 26। इस रेंज में होगा, आप पैसा बनाओगे इन अ वेरी रिस्क एडजस्टेड मैनर, अदरवाइज बहुत वोलेटिलिटी होगी। अल्टीमेटली लास्ट चीज मेरे लाइफ में, तो मैं इसको बहुत दिल से बिलीव करता हूँ और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी बिलीव करें। लिसन टू अ लॉट ऑफ ज्ञान बट विथ अ ग्लास ऑफ बियर। जब पैसे डाल दिए हो ना, उसके बाद ज्ञान सुनना। सिर्फ ज्ञान है ना, वो खाली होता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके आगे आई हैव लॉन्ग स्लाइड्स टू टॉक अबाउट माय फिलॉसफी। जाने से पहले एक चीज आप लोगों के साथ, जाने से पहले नहीं, एक्चुअली रोकने से पहले एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, एक फैक्ट, कि आज से 7 साल बाद 2030 में इंडिया विल बी अ हाई इनकम कंट्री, बिकॉज 50% of India's population or more than 50% of India's population
will be upper middle and high income earners. तो अगर ये चीज को आप भी अग्री करते हैं तो मेरे हिसाब से बैकिंग दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रीमियमाइजेशन बढ़ रहा है, बैकिंग द राइट प्लेस जहाँ पे कंजम्पशन जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, इस तरीके के प्लेस को बैक करेंगे, आई थिंक वी विल ऑल मेक अ लॉट ऑफ मनी. Again, I have long slides to talk about, but I will put a pit stop here. Thank you very much. मेरी कहानी, मेरा थॉट प्रोसेस सुनने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए. अगर आपको इस पॉइंट पे कुछ भी ऐसी चीज लगी हो जो, बिकॉज आई एम वेरी ब्लंट विथ वट एवर आई से, मेरे को जो लगता है मैं बोल देता हूँ. ऑफकोर्स मैं सोच के बोलता हूँ पर मैं फिल्टर करके नहीं बोलता हूँ. तो अगर आपको कुछ भी ऐसा लगा हो थोड़ा सा भी ऑफेंसिव तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. प्लीज डोंट माइंड. बट जो मुझे सही लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और आगे भी करता रहूंगा. Thank you very much, and it is an open invitation to all of you to come join us as we build India's best alternate investment management company. I would love to talk to you all, understand कि हम कैसे साथ में काम कर सकते हैं. स्क्रीन पे मेरा और मेरी कलीग्स का कॉन्टैक्ट नंबर है. प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, not specifically for a business or transaction, but otherwise also we can always learn from each other and grow. That is my thought process. Sagar, thank you. Nishant, thank you for giving me this opportunity. I don't know if Kanak is there on the call, but also Kanak, wherever you are, if you are listening, thank you very much for giving me this opportunity to present in front of this forum. Sagar, open to you. I had promised कि मैं 45 minutes में खत्म करूंगा. 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं. We'll try to wind it up as soon as possible. That's completely fine, Ajay bhai. Thanks for a lovely presentation. It was indeed helpful for all of us to understand the company, the philosophy of the company, and the strategies and all. So it was lovely. I have a few questions, but before I ask my questions, I would like to see if someone else has some many questions. अगर आपको किसी को भी कोई questions हो तो please आप chat box में डालिए. I'll read it on your behalf and then Ajay can answer. So meanwhile, अगर किसी कोई questions हो जो chat box में आए, उससे पहले I have a few questions, so I'll ask on all's behalf. मेजर एक मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छा किया, कुछ कुछ स्टॉक्स आपने एग्जिट भी किए, अलोकेशंस कम भी करते रहे. तो डिक्सॉन का जैसे एग्जांपल आपने दिया कि ऑलमोस्ट ऑन द हाईज आपने एग्जिट किया, अभी ऑलमोस्ट ऑन द लोज आपने फिर से एंट्री किया. तो व्हाट आर द पैरामीटर्स, आप एग्जिट कब करते हैं कोई? एग्जिट दो केसेस में होता है. एक, वैल्यूएशन अगर बहुत ही आउट ऑफ रेंज चला जाए, अनरियलिस्टिक हो जाए, तो हम एग्जिट कर देते हैं. बिकॉज हर कंपनी की, हर इंडस्ट्री की एक डिफाइंड रेंज है. उससे ज्यादा, मतलब जैसे मैंने गोकुलदास एक्सपोर्ट्स 1 साल में एग्जिट कर दिया. Right. बिकॉज गोकुलदास एक्सपोर्ट एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है. मतलब हमने जब लिया तो वो 7.5-8 टाइम के पी पे था, अब वो 22-23 टाइम के पी पे है. कंपनी का जो अगर हिस्टोरिकल पी मल्टीपल देखूं या इंडस्ट्री का भी हिस्टोरिकल मल्टीपल देखूं, तो मतलब कमोडिटी कन्वर्टर्स हैं, 14 से 16-17 टाइम का पी मल्टीपल होता है. उससे ज्यादा, मतलब आप गुड मार्केट में 20 दे दो, 21 दे दो, पर 24-25 दैट्स यूफोरिक. तो वहां हमको वैल्यूएशन सही नहीं लगा, हमने एग्जिट कर दिया. अदरवाइज अगर हम कोई सिक्लिकल प्ले कर रहे हैं और हमें, जैसे लेमन ट्री वाज अ साइक्लिकल प्ले, कि हम बॉटम ऑफ द साइकिल पे आए और हमें लगा कि 9900 इज द टॉप ऑफ द साइकिल, तो निकल जाना सही है, तो हम निकल गए. इस तरीके के एग्जिट्स होते हैं. अदरवाइज तो वैल्यू मतलब एलोकेशन चेंजेस होते रहते हैं. कोई स्टॉक अगर बढ़ गया है तो उसका मैं नेचुरली कोशिश करता हूँ कि मैं उसको उसके ओरिजिनल एलोकेशन पे ले आऊं, बिकॉज वहां से मुझे जो पैसे मिलेंगे मैं वो कहीं और रिडिप्लॉय कर सकता हूं. Right. तो हमारे So एग्जिट इसी तरह. बेसिकली एलोकेशन स्ट्रेटेजी जो है वो, और सेकंड एक्सट्रीम वैल्यूएशंस, ये दो मेजर एक्सट्रीम वैल्यूएशन. थर्ड इज कि अगर कंपनी की अर्निंग्स ही पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है. हमने रिसेंटली ग्रीन पैनल नाम की एक कंपनी है, वो हमने 8 महीने पहले ली थी, पर हमने रिसेंटली बेयरली एट कॉस्ट 5-6% गेन पे एग्जिट कर दी.
That is because companies constantly under pressure, raw material pressure, export pressure, import substitution pressure. So better to get out fundamentally if the business shape is deteriorating. Okay. And do you guys meet the management regularly or या फिर ये वीडियो कॉल्स कॉल कॉल्स पे ये सब बात हो जाती नहीं, हम एक्चुअली बहुत ही हैंड्स ऑन, मैं बहुत ही हैंड्स ऑन इन्वेस्टर हूँ इस तरीके से। आई डोंट लाइक टू, मैं अपनी टीम को भी ये कहता हूँ, ऑफिस में बैठ के कोई धंधा नहीं बनता और ना किसी के धंधे में इन्वेस्टमेंट होती है। तो बाहर जाओ, प्लांट्स में विजिट करो, चैनल चेक्स करो, मैनेजमेंट से मिलो। सो जितनी मेरी पोर्टफोलियो कंपनीज हैं उनके लेवल 1 कंपटीशन है। वी मीट एवरीवन इन द इंडस्ट्री एज ऑफन एज वी कैन, टू एन एक्सटेंट की कुछ कंपनीज के साथ तो मैंने एक आई लाइक टू डू सम चैट शो काइंड ऑफ थिंग, तो मैंने कुछ कंपनीज के साथ तो वो किया भी है, जैसे एंजल वन है उनके साथ मैंने किया है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज है उनके चेयरमैन के साथ मैंने किया है। तो वी कीप इंटरैक्टिंग विद द मैनेजमेंट वेरी रेगुलर। Great. Okay. So there are a few questions in the chat box. एक the burning question, markets बहुत हाई पे है, तो what's the view as a fund manager? आज अगर कोई investor नए रुपए लेके आ रहा है, तो at this juncture कैसे जाना चाहिए? It should be in tranches, it should be one time buy, या what's your take on that? कुछ फैक्ट्स आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इस सवाल का जवाब दूंगा मैं। दिस इज फ्रॉम माय रीसेंट इन्वेस्टर नोट, इफ आई कैन आई विल शेयर इट विथ यू ऑल। बट तो अगर आप ये स्क्रीन देखेंगे ना तो आपको एक बॉक्स दिखेगा यहाँ पे पी मल्टीपल्स का। Yes. ठीक है। और देखो, आप जब दूसरे फंड मैनेजर से बात करोगे तो शायद वो आपको एक स्टोरी देंगे कि देखो, इंडिया इज द ओनली मार्केट विच इज डूइंग वेल, ओनली कंट्री विच इज डूइंग वेल इन अ ग्लूम एंड डूम सिचुएशन इन द वर्ल्ड। और फंडामेंटली हमारा शेप अच्छा है, पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट है, और अभी तो मालूम है अगले साल भी कौन आने वाला है। तो वी ऑल नो दैट, मतलब एवरीथिंग इज स्टेबल, कंजम्पशन इज ग्रोइंग, इनकम इज ग्रोइंग, there are good things around all around us, मतलब despite being bad outside the country, but हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है, तो ऐसे में थोड़ा प्रीमियम देना चलता है। आई थिंक थोड़ा इज ओके, बट थोड़ा मतलब 5-7%, 10% प्रीमियम फिर भी ठीक है। उससे ज्यादा दे रहे हो तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एक जो जैसे न्यूटन का लॉ है ना, वैसे एक लॉ है विच इज कॉल्ड मीन रिवर्जन। Mean तो you, yes. जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना होता है। तो जैसे यहाँ पे जो नीचे आया है उसको ऊपर जाना है, उसी तरह से जो ऊपर जाता है उसको, मतलब वी विल हैव टू कम बैक टू अवर एवरेजेस। अब अगर Right. एवरेज की बात कर ही रहे हैं तो अगर आप निफ्टी 50 का पी मल्टीपल देखो तो वो अभी भी पिछले 10 साल का जो एवरेज है उससे कम है। BSE 500 is at a slight premium. Small caps are at a very hefty premium. Small caps are at 20% premium. Mid caps are at about 10% premium. Large caps are at a discount. तो अगर आप मुझसे पूछो, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ इस मोमेंट पे लार्ज कैप्स में इन्वेस्ट करने के लिए। लार्ज कैप्स में आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। अगर आप मल्टी कैप पोर्टफोलियोज में जा रहे हैं तो वहां जाइए जहां पे पोर्टफोलियो लेवल पी मल्टीपल, जैसे हम हमारे पोर्टफोलियो का पी मल्टीपल का बात करते हैं। हमारा करंट पोर्टफोलियो लेवल पी मल्टीपल इज 23.1। तो पोर्टफोलियो लेवल पी मल्टीपल बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, वेदर अ पीएमएस और अ म्यूचुअल फंड। अगर आप बहुत एक्सपेंसिव पोर्टफोलियो में पैसा डाल रहे हैं तो गारंटी है पैसा नहीं बनेगा अगले 1-1.5 साल में। वैल्यूएशन एडजस्टेड रिटर्न बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप उसको इस तरीके से देखें कि अगर एक नया इन्वेस्टर है, पैसा डालना चाहता है, तो उसका पैसा ट्रांचेज में डिप्लॉय हो। अगर अगले 5 से 6 महीने की ट्रांच में, जैसे अगर मेरे पीएमएस में कोई 50 लाख रुपए डालता है तो हम अगले 5 महीने में इक्वली ट्रांच आउट करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। और उसमें भी हमारा 1 साल पहले स्मॉल कैप में 55% एलोकेशन था, इस वक्त मिड एंड लार्ज कैप में 60% एलोकेशन है और स्मॉल कैप में 30 है। तो इस तरीके से एलोकेशन मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मोमेंट पे मैं किसी को भी एडवेंचरस होने का एडवाइस कतई नहीं दूंगा। आई थिंक अगर अगले 6 महीने में एक 8-10% का ड्रॉप आ भी गया तो दैट कैन हैपन, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पूछने वाला था वो यही था, यशदीप भाई ने पूछा है कि अगर करेक्शन आए तो क्या लग रहा है कितना आना चाहिए? सो आई थिंक दैट यू हैव समड अप के
8-10% का करेक्शन आए तो स्मॉल कैप में तो आप 15-20% भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मिड कैप्स में 7-8% का, लार्ज कैप्स में मुझे नहीं लगता। हाँ मतलब लार्ज कैप्स में भी ऐसे पॉकेट्स हैं जो महंगे हैं, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स में अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कुछ अच्छे स्टॉक्स अच्छी स्क्रीमिंग वैल्यूएशंस पे अवेलेबल हैं। एंड मिस्टर विशाल अवस्थी आपको पूछ रहे हैं कि हाउ टू एसोसिएट विथ यू एज एन एडवाइजर। सो we'll share his number with Piper Serica team. So विशाल भाई आपको अजय भाई की टीम से कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा एंड देन यू कैन गेट एसोसिएटेड एंड स्टार्ट द वर्क। And so we had a good healthy discussion about the topic today. मैं जस्ट थोड़ा समरी ब्रीफ अप करना चाहूंगा कि फ्रॉम नॉट फ्रॉम कोडिंग, मतलब इंजीनियर जो कोडिंग नहीं करना चाहता था वो फाइनेंशियल एनालिस्ट who got promoted to the core team and the youngest member of the core team. That was a lovely experience and lovely achievement. इसके अलावा जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा, जो नेम ऑफ द कंपनी, दैट वाज अ लवली, क्योंकि द थॉट बिहाइंड द नेमिंग द कंपनी दैट इज वंडरफुल कि पेपर एंड सिल्क का जो बार्टर सिस्टम था, दैट वाज अ लवली कंसेप्ट ऑफ नेमिंग द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी को 50 लाख नहीं देना है फिर भी नहीं देना तो 2 लाख में ट्राई कर लो भाई, अच्छा लगे बाद में आओ 50 लाख लेके, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज अ वंडरफुल थिंग जो मुझे अच्छा लगा। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ यू वांट टू शेयर सम डिस्क्लेमर और समथिंग, एंड देन आई कैन हैंड इट ओवर टू निशांत एंड देन वी कैन एंड अप द सेशन। डिस्क्लेमर एक ही है कि जो भी स्टॉक्स के बारे में मैंने कहा वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, वो एक केस स्टडी है। दैट्स द ओनली डिस्क्लेमर दैट आई एम मैंडेटेड टू गिव। अदर देन दैट आई हैव ट्राइड टू बी इन माय लिमिट्स एंड इन माय रेगुलेटरी बाउंड्स इन शेयरिंग व्हाटएवर आई कैन। थैंक यू सो मच अजय सागर भाई, सागर भाई। भाई एक एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। बोलिए बोलिए अनिल। अजय जी, अनुज मित्तल फ्रॉम दिल्ली दिस साइड। यस अनुज भाई, हाउ आर यू? हाँ, आपके बारे बढ़िया बढ़िया, आपके बारे में रोमित भैया से बात होती रहती है वैसे तो। एक्चुअली क्या है, मेरे को एक छोटा सा कंसर्न ये था कि अभी जैसे बिकॉज म्यूचुअल फंड तो बहुत तेजी से, मतलब सारा उस नॉलेज भी हमें मिलता है, रेगुलरली ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, बट मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग पीएमएस बिकॉज एचएनआई कस्टमर के लिए बना है, एक माइंडसेट बना हुआ है, मतलब कि एक बड़े कस्टमर के लिए बना हुआ है, एचएनआई के लिए बना है, सो पीपल डोंट हैव ट्रेनिंग्स। And nowadays, lot of companies like mutual fund companies are also launching PMSs and managing, apart from Motilal, ICICI, and there are a lot of different companies who are managing PMS. But it's a very difficult job for a mutual fund distributor to identify and recognize and make some network and analyze, because you get a lot of tools about mutual fund research, lot of website you will get out, but how to get these kind of research tools, or how to analyze which is best, which is not, what are the parameters to look upon a PMS, and what is the strategy? अगर आप मुझसे पूछें कि अगर मैं रिसर्च करता, बिकॉज रिसर्च मेरा बैकग्राउंड है, तो अगर मैं रिसर्च करता तो मैं एक ये देखता कि मैनेजर का खुद का क्या स्किन इन द गेम है, मतलब बातें कुछ और खुद कहीं और कुछ कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसकी मैनेजर की कंसिस्टेंसी, मतलब एक तो होता है ना कि आप पैसे बना रहे हो इन अ गुड मार्केट, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि मैनेजर, बिकॉज हर किसी की जर्नी में एक होगा अनुज भाई कि एक डाउन फेज आएगा, मेरी जर्नी में भी आया, आई एम श्योर आपकी और यहाँ सबके जर्नी में आया होगा, पर हाउ डू यू राइज अप इफ यू फॉल? ठीक है, वो कहावत भी है, फॉल ट्वाइस बट गेट अप द थर्ड टाइम। तो आपको किसी भी पीएमएस मैनेजर से जब बात करो तो उनको बोलो कि दादा अपना हिस्टोरिकल मंथली एनएवी भेजो। वो मंथली एनएवी का एक चार्ट होगा सिंपल, जिससे आपको पता चलेगा कि वो गिरा तो वो रिकवर कैसे हुआ। आई थिंक अगर ये तीन चीजें अगर आप देख लो ना, तो मेरे हिसाब से काफी है। बाकी अल्टीमेटली देखो, म्यूचुअल फंड्स में क्या है ना कि बिकॉज इट्स अ फेयरली डाइवर्सिफाइड व्हीकल,
रोज पैसा आ रहा है, तो साइंटिफिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, राइट? इन पीएमएस दैट इज नॉट। अब अगर आपने जो सवाल पूछा उसको मैं दो हिस्सों में फिर आगे देखूं, कि एक, एचएनआईज के पास जाके पीएमएस की बात करना, ठीक है, उसके लिए आपको पहली बात तो, अगर मान लो आप मेरी पीएमएस की बात कर रहे हो, तो आपको मेरे साथ पहले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, हिस्ट्री क्या है, जो मैंने आज थोड़ी कोशिश की बताऊं आप लोगों से। और कोशिश करके थोड़ा पैसा खुद का, अब मेरे केस में तो ये नहीं है आपको 50 ही देना है, आप मेरी मल्टी कैप स्ट्रेटेजी में स्मॉल केस में भी डाल सकते हो। अगर आपकी पीएमएस की कैपेबिलिटी है तो मैं ये कहूंगा कि आप पहले उस मैनेजर को पैसे दो, एक्सपीरियंस करो, 1 महीना 2 महीना एक्सपीरियंस करो। उसके बाद जब आप इन्वेस्टर से भी बात कर रहे हो, मैं अपने सारे एडवाइजर से ये कहता हूँ कि देखो, आप 5 इन्वेस्टर आइडेंटिफाई करो, आप मुझे बता दो अपने 5 इन्वेस्टर आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हमारा लिटरेचर भेज दो। आई एम श्योर उनको टाइम नहीं होगा ये सब पढ़ने में, बट आप मुझे बताओ, आप और मैं संग संग जाएंगे, उनको पिच करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको ये फिलॉसफी समझाएंगे कि सबसे पहली बात तो उन्होंने पीएमएस क्यों देखना चाहिए। कौन सा देखना चाहिए तो बाद में आएगा, पहले क्यों देखना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप एक एचएनआई को देखो, ठीक है, मतलब बीच में ना लिंक्डइन पे किसी ने कंपैरिजन डाला था म्यूचुअल फंड और पीएमएस का, मैंने कहा मेरे को रोमित दादा नहीं वो कंपैरिजन मुझे भेजा कि व्हाट इज योर ओपिनियन। आई सेड यार क्या मतलब कैसे कंपेयर कर रहे हो। अगर आप एक वेल्दी आदमी के पास जाओगे ना, आई एम श्योर आप लोग सब भी अगर अपने घर में देखेंगे ना, तो आपके घर के पार्किंग में अगर एक एसयूवी खड़ा है, तो साथ में एक हैचबैक या एक स्कूटर या एक बाइक भी होगा ना। आप मार्केट में, आप दिल्ली में खान मार्केट में फॉर्च्यूनर लेके नहीं जाएंगे ना। सही है अनुज भाई, आप 100% जाएंगे तो क्या करेंगे, आप बाइक लेके जाएंगे, एक्टिवा लेके जाएंगे, या छोटा कोई गाड़ी लेके जाएंगे, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि वो एचएनआई जो है, उसको सिर्फ पीएमएस में पैसा डालना ऐसा नहीं है, पर अगर उसके पास 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टेबल कैपिटल है, तो उसको म्यूचुअल फंड्स में 1 सवा करोड़ 1.5 करोड़ म्यूचुअल फंड्स में रखो, एक आधा पीएमएस दो, उसको प्राइवेट मार्केट के कुछ इन्वेस्टमेंट्स कराओ, उसको कमोडिटीज में उसके पास है ना पैसा रिस्क लेने के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए, तो वो होना चाहिए। और नेचुरल प्रोग्रेशन भी एक चीज होती है, मतलब अगर आप मुझसे पूछो कि किसी ने पूछा था म्यूचुअल फंड और पीएमएस में क्या फर्क है, मैंने कहा आप जब एयरपोर्ट जाते हो और वो गेट के पास आप वेटिंग एरिया में बैठते हो, वो एक अलग होता है। फिर आपके पास अगर एक अच्छा कार्ड है तो आपको लाउंज एक्सेस मिलेगा, वो एक अलग होगा। और अगर आपके पास टॉप ऑफ द लाइन सिग्नेचर कार्ड है एचडीएफसी बैंक का या किसी बैंक का, तो आपको जो प्रीमियम लाउंज मिलेगा वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। देखो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड्स का मैंडेट है वेल्थ को सेव करना अच्छे से, पीएमएस का मैंडेट है कि इंडेक्स को बीट करना है, मोटा रिटर्न बनाना है। कोई म्यूचुअल फंड का मैनेजर आपको नहीं बोलेगा मेरे को 18-20 बनाना है, मैं तो आपको सामने से बोल रहा हूँ मेरे को 18 से 20% तो मिनिमम बनाना है। तो एक मैंडेट टू मैंडेट भी फर्क है, इसलिए भी होना चाहिए। अल्टीमेटली अनुज भाई, मेरा इन सारी बातों को मैं समराइज करूंगा, जैसे सागर ने एक समरी प्रेजेंट की थी ना, मैं एक चीज को, हर चीज को एक ही बात में समराइज करता हूँ, और ये मेरा पर्सनल कोर बिलीफ है, और आप चाहें तो इसको टेस्ट कर ले। वेदर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, whether you are investing in a stock in India, in US, in Zimbabwe, whether it is a listed company, whether it is a large cap, mid cap, small cap, whether it is a private company, startup, whether it is a mutual fund, whether it is a PMS, it is always going to be driven by the person, not by anything else. आप क्लासिक एग्जांपल एचडीएफसी बैंक का ले लें, जब तक पुरी साहब थे, आदित्य पुरी थे, तब तक वो बैंक का वन वे स्ट्रीट था। जिस दिन से पुरी साहब गए हैं, कभी टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी क्रेडिट कार्ड इशुएंस बंद हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी सडनली कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक्वायर कर ले रहे हैं, कुछ कुछ हो रहा है। तो एक मतलब आप एप्पल की केस स्टडी ले लें, मैं ये नहीं कह रहा स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी, बट ही वाज अ विजनरी इन क्रिएटिंग बिजनेस। पर उनके जो सक्सेसर आए, उन वो जब आए तब लोगों ने कहा कि बॉस हाउ विल ही रिप्लेस स्टीव जॉब्स, बट टुडे मतलब ही इज टेकन एप्पल इनटू अ डिफरेंट लीग। आप इंडियन क्रिकेट टीम ले लें, जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तो लोगों ने कहा, लोग आंसू बहाए थे कि बस इंडिया विल मिस अ लेजेंडरी क्रिकेटर।
We now have Virat Kohli, we now have Dhoni, we now have Hardik Pandya. बस कमी नहीं है ना. But ultimately, Anuj bhai, and not just for you, everyone, whenever it comes to investment, look, it is always going to be driven by that one person. Now, in this case, this one person is me or Abhay. अगर आपको हमारे पे फेथ है कि बस ये लोग ढंग के लोग हैं, पैसा बनाएंगे, तो आप हमें पैसा दीजिए. अगर आपको नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया ज्ञान का ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो यू आर वेलकम टू बी गिविंग मनी टू फैंसी फंड मैनेजर्स. और ये भी नहीं कह रहा हूं कि एक आप जब ऑल्टरनेट्स में भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू आर वर्किंग विद 2 PMS मैनेजर्स एटलीस्ट. ओके. सॉरी, मेरा Thank सवाल, आपके सवाल का जवाब थोड़ा लंबा था. नहीं. एक्चुअली आई हैव आस्क्ड बिकॉज़ दिस इज द बेसिक कि बिकॉज़ क्या होता है ना, वैल्यू रिसर्च, मनी कंट्रोल, ये सब मिल जाता है, एक आम इन्वेस्टर को भी मिल जाता है. बट इन केस ऑफ पीएमएस, नो वन फाइंड एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम अ ट्रस्टेड पर्सन और अ ट्रस्टेड वेबसाइट. नहीं, पर वो उसमें काम हो रहा है. एपमी काफी काम कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स. दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. आई थिंक 6 महीने के अंदर वो एक टूल बना देंगे जहां पे जाके आप ये सब देख सको. सागर भाई, यू कैन कंटिन्यू. Nishant. So, thank you for a wonderful session, Abhay. We can wind up the session if we have no more questions. So anyone has any questions, you can unmute themselves and ask. Okay, so I think we can wind up the session. So thank you Ajay ji so much. Thank you all for joining. Thank you everyone. Thank you. Goodbye. Namaste.